کہ پاکستان انشاءاللہ 19 دسمبر کو میزبانی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن OIC کا، جو کہ فارن منسٹرز کا سیشن ہوگا۔ اس کا انعقاد انشاءاللہ 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے، اس کا فوکس افغانستان ہوگا، اور اس کا بنیادی جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے کہ افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی ہے اور آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ اگر بروقت توجہ نہ دی گئی تو وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے۔ اگر وہاں فوری کمک امداد نہ پہنچائی گئی اور اگر ان کے جو ریسورسز ہیں وہ فروزن ہی رہے تو ایک اکنامک کرائسس، ایک اکنامک کلیپس جو ہے وہ وہاں جنم لے سکتا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک اثرات نمودار ہوں گے۔ افغانستان کے لیے پریشان کن ہوں گے، یقیناً افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے لیے اور دیگر پڑوسیوں کے لیے بھی، اور پورے خطے کے لیے یہ تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کاوش کی، اور الحمدللہ وہ کاوش آگے بڑھ پائی ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 19 کو انشاءاللہ یہ ایک غیر معمولی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے اس اجلاس کی اہمیت اور دیگر OIC ممالک سے جب رابطے کیے تو ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرائی کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو تقریباً نصف آبادی، یعنی کہ 22.8 ملین افغان جو ہیں وہ فوڈ شارٹیجز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تقریباً 3.2 ملین بچے میل نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے میگنیچیوڈ اور نوعیت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کا OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس 41 سالوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر۔ آخری اجلاس جو افغانستان پر OIC کا CFM کا ہوا تھا وہ 1980 میں ہوا تھا، اور یہ اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو 41 سال بعد پاکستان پھر اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 19 کے اجلاس سے پہلے 18 تاریخ کو جو سینئر آفیشلز ہیں وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور وہ آپس میں ان کا تبادلہ خیال ہوگا، اور ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ جو OIC کا سیکریٹریٹ ہے ان کے نمائندگان اس سے بھی پہلے، یعنی کہ 14 تاریخ کے لگ بھگ وہ اسلام آباد آ چکے ہوں گے ٹو اوورسی دی پریپریشنز ان اسلام آباد۔ ہم نے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو OIC کے ہمارے منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز ہیں، ان کو تو ہم نے دعوت دی ہی ہے، ان کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز آف دا P5 کنٹریز۔ اب P5 میں آپ جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اور اس میں برطانیہ بھی ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے جو کہ یورپین یونین کے
خارجہ امور کو دیکھتے ہیں ہائی ریپرزینٹیو اینڈ دا وائس پریزیڈنٹ آف دا یورپین یونین ان کو دعوت دی ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں یو این ایجنسیز کو, ریلیونٹ یو این ایجنسیز کو, جو اس سارے معاملے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں ورلڈ بینک کے نمائندے کو بھی, اور ہم کچھ اور اہم ممالک جو کہ خطے میں نہیں آتے یا اسلامک ورلڈ میں نہیں آتے لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جرمنی ہے, مثال کے طور پر جاپان ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے. یہ اہم ممالک ہیں لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت سے, ان کی موجودگی سے انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. یہاں ہماری یہ خواہش بھی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس OIC کا اور دیگر فورمز کا اسلام آباد میں منعقد ہو, ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرام افغانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں. نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ, اور جو اپنی کنسرنز ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکیں اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکیں. ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا ایمرج ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عربیہ کا گرین انیشیٹو انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاض میں, تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنس سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں, اور یہ 29 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ, ہم دیگر ممالک سے تو درخواست کر رہے ہیں, ہم یورپین یونین سے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں, لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک, بحیثیت امہ, اور افغانستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان ڈسکشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ OIC کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے, تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی, نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر کراؤن پرنس فیصل کا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل, ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ذاتی دلچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرانی میں, اس کو سٹیئر کرنے میں, اور GCC کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں, کنسنسس بلڈ کرنے میں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان حالات میں جو جنم لے رہے ہیں افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی, اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے جو پہلے دہرائی ایک دفعہ ہو چکی ہے. اگر
बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाती तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है, और उस क्राइसिस से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी, अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा होगी। वो अदम इस्तेहकाम जो है वो जन्म दे सकता है एक रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट को, और खुदा न खास्ता वहाँ एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो उसका इम्पैक्ट आएगा और वो ट्रिगर करेगा, वो जन्म देगा एक नए मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज को। आपके इल्म में है, पहले भी आप तकरीबन 3 मिलियन के करीब अफगान रेफ्यूजीज की मेज़बानी कर रहे हैं, और मज़ीद अगर कोई प्रेशर आता है तो हमारे रिसोर्सेस हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उसको हैंडल कर सकें। तो वो भी तशवीश हमारे जहन में है, और सिर्फ हमारे जहन में नहीं है, ईरान भी फ़िक्रमंद है, ताजिकिस्तान भी फ़िक्रमंद है। जितने ममालिक जिनके बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, उनको ये तशवीश है। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह 7 तारीख को मैं मिल रहा हूँ ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव से और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से। उनसे भी तबादला ख्याल होगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, और कोशिश करूँगा कि उनको भी सेंसिटाइज करूँ कि सूरत हाल है क्या, और उन्हें अपना किरदार किस तरह अदा करना चाहिए। मैं ये भी कहता चलूँ कि जब 15 अगस्त के बाद जब इनखला विड्रॉल हुआ, और विड्रॉल के बाद जब एक इंटरिम सेटअप ने वहाँ तालिबान की हुकूमत मारज़ वजूद में आई, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान ने बिलखुसूस पूरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई, और उस कैंपेन का जो हैशटैग था वो था सैंक्शन पाकिस्तान। सारी जिम्मेदारी, सारा मलबा वो पाकिस्तान पे डालना चाहते थे। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी सफारतकारी से ऐसा नहीं होने दिया, और हिंदुस्तान को उनके अज़ाइम में शिकस्त हुई। इसके साथ साथ मैं ये भी मुझे कहते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच की वजह से, अपनी सफारतकारी की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलमूम कायल कर चुका है कि इंगेजमेंट सबके मफाद में है। रिकग्निशन का जब मरना आएगा देखी जाएगी, वो बात की बात है, लेकिन फिल फॉर इंगेजमेंट जो है वो सबके मफाद में है। देखा कि उसके बाद बतदरीज अब काबुल के साथ एक इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत से वफूद वहाँ जा चुके हैं, बहुत से वज़ीर ख़ारजा वहाँ जा चुके हैं, और दोहा में भी एक गुफ्तो शुनीद और एक बैठक हुई है, और बात आगे चल पड़ी है। हमने ये भी कोशिश की कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाएं, और उसके लिए मैंने फौरी तौर पर 15 अगस्त के बाद जो पड़ोसी ममालिक हैं 4 मुल्कों का फौरी दौरा किया, जिसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और ईरान है। उन दौरों से चीन के साथ मुसलसल राब्ता था। इन राब्तों की नतीजे में हम एक प्लेटफॉर्म ऑफ द नेबर्स, ऑफ द 6 नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान बनाने में कामयाब हुए। और ये प्लेटफॉर्म बनाने का जो बुनियादी मकसद था और है कि हम जितने हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हमारी आपस में मशावरत भी हो कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, और अगर हालात बेहतर हो सकते हैं और अमन आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, सो दैट हम जितने नेबर्स हैं हमारी एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो
ऑन अफगानिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें अच्छी पेशरफ्त हुई। मैं ये भी कहता चलूँ कि मॉस्को फॉर्मेट, मॉस्को में भी नशिस्तें हुई और पाकिस्तान के वफद ने, पाकिस्तान के नुमाइंदगान ने जो मॉस्को फॉर्मेट में गए, उनका रोल सराहा गया और कंस्ट्रक्टिव रोल, सब ने कहा कि पाकिस्तान का रोल कंस्ट्रक्टिव था। अब हमारी कोशिश है कि ये जो इजलास मुनक़िद होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह 19 तारीख को, हम उससे दो चीज़ें हासिल करें। नंबर एक, दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। पहले अफगानिस्तान मुतासिर होगा, फिर हमसाए मुतासिर होंगे, और फिर आप भी मुतासिर हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन भी मुतासिर हो सकता है, वेस्टर्न कंट्रीज भी मुतासिर हो सकती हैं। तो क्राइसिस के जन्म लेने से पहले आइए मिलकर उसको अवर्ट करने की हम कोशिश करें। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम रिसोर्सेस मोबिलाइज करें कि दीगर ममालिक जो आएंगे और तंजीमें, वो अफगानिस्तान की किस तरह मदद कर सकती हैं। ऑब्वियसली अगर हमने क्राइसिस को अवर्ट करना है तो उसके लिए वसाइल दरकार हैं, तो वसाइल कहाँ से आएंगे, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने तो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करने की कोशिश की है। हमने अद्वियात भी भेजी हैं, फूड सप्लाईज भी भेजी हैं। हम अब 50,000 टन हमने गंदम देने का फ़ैसला भी किया है, वो भी हम कर रहे हैं। हम जो गंदम हिंदुस्तान ने कहा था कि हम भेजना चाहते हैं, हमने उसको फैसिलिटेट करने का भी वाज़े को पैगाम दिया है, और खुदा करे वो कर जाएं। कहते तो हैं वो करना चाहते हैं, और फिर कहने के बावजूद कोई ना कोई बहाने भी तलाश करते हैं। कभी ट्रकों का बहाना बनाते हैं, कभी कुछ और बहाना बनाते हैं। हमने कोशिश की है कि उनको कोई मौका फराहम ना करें कि अगर इंसानियत की वो खिदमत करना चाहते हैं और अफ़गानों की खिदमत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को अपने अफ़गान भाइयों के लिए रास्ता देने में कोई हमें दिक्कत या कोई हम आर महसूस नहीं करते। आप बहाने बनाइए, जल्द अज जल्द अगर आपने गंदम देनी है तो ज़रूर दीजिए ताकि उनकी ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। और तीसरी चीज़ जो हम चाहते हैं कि विदिन दी OIC हमारी आपस में एक कलेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो। और अफ़गानिस्तान दुनिया की कोशिश थी, दुनिया की तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ हमारे पड़ोसियों की कोशिश थी, और पड़ोसी मेरा इशारा आप समझते हैं कि वो इस सारे क्राइसिस में सिंगल आउट करे पाकिस्तान को। और हमारी कोशिश थी कि हम दुनिया को सही बयानियाँ उनके सामने रखें और दुनिया को इंगेज करें। तो इस पेशरफ्त से मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबी मिली है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप ने वक्त भी दिया, तशरीफ़ भी लाए। शुक्रिया। अगर एक एक कर ले तो आसान। देखिए, जो कल का वाक़या है इस पे कोई शक नहीं अफसोसनाक है, इस पे कोई शक नहीं बाइस नदामत है, इस पे कोई शक नहीं कि हर ज़ी शऊर इंसान को जिसमें ज़रा भर इंसानियत है वो इस वाक़ये से गाफिल नहीं रह सकता। इंसानियत की बात है बुनियादी तौर पर। हमने न सिर्फ मजम्मत की है, हमने इसका नोटिस भी लिया है एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओवरसी कर रहे हैं।
ISPR का और आर्मी चीफ का नुक्ता नज़र बयान आपके सामने है, वज़ीर आला पंजाब का बयान आपके सामने है, और उनको उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है, और 48 घंटे में मैं तवक्को करता हूं कि वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है। हमारा श्रीलंका के साथ राब्ता है, फॉरेन सेक्रेटरी की हम ने लम्हा बलम्हा श्रीलंका के हाई कमिश्नर को बाखबर रखा, उनको हम बताते रहे, और मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान का जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है उसको श्रीलंका ने एप्रिशिएट किया है। ऑब्वियसली ऐसा वाक़या है जिससे सबको दुख हुआ है, हमें दुख हुआ है तो उनको क्यों नहीं होगा, यकीनन होगा, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें हम किसी पूरे तबके को या मुल्क को इससे हम इस पर हम अंगुश नहीं उठा सकते, लेकिन वो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान उनको जो जिम्मेदार हैं कैफ़िर किरदार तक पहुंचाएगा। मेरी मुकम्मल कर एक जुमला रह गया, मेरी श्रीलंका के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता हुआ है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज दोपहर को या शाम को उनकी सहूलत के मुताबिक मेरी उनसे बात भी हो जाएगी, और मैं उन्हें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्हें एतमाद में लूँगा। इंशाअल्लाह श्रीलंका का जो इनिशियल रिएक्शन आया है, हमारे ताल्लुकात उससे हरगिज़ मुतासर नहीं होंगे। वो समझते हैं कि एक फ़ेल है, अफसोसनाक फ़ेल है, और इससे पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉडी की वापसी जो है वो श्रीलंका होगी, तो या हुकूमत जो है वो मुतज़िल है कि आपसे वज़ारत ख़ारजा जो है वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला वो उसमें ऑफिशियली इशू करेगी और फिर आपको मामला चलेगा, तो उसकी बॉडी का यहाँ से श्रीलंका डिपार्चर के लिए क्या इक़दाम हमने किए गए कि क्या उनका कोई जी जी देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, मैं सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया। देखिए उसमें ये है कि हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया है थ्रू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट, और उनकी फैमिली के हम व्यूज़ ले रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होगी जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। जहाँ उनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, जैसे वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं करूँ बिल्कुल, हमने कोशिश की है दयानतदारी से AVM के इशू पर और दीगर अहम लेजिस्लेशंस पर हमने कोशिश की है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्हें एतमाद में लिया जाए और इस पर कोई कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। आइडिया है बेहतरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग कई दफ़ा वो मकसद को सामने नहीं रखते, मकसद ओझल हो जाता है और सियासत गालिब आ जाती है। हमारी कल भी ख्वाहिश थी, आइंदा भी ख्वाहिश होगी कि AVM पर और अहम लेजिस्लेशन पर अगर उनसे इंगेज किया जा सकता है हम करना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। सर, मैं बिजनेस रिकॉर्डिंग से अब कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, OIC का जो इजलास होगा कुछ क्वांटिफाई किया है कि कितनी फाइनेंशियल या सिस्टम किस किस्म की चाहिए? देखिए, ये तो वॉलंटरी बेसिस है ना, ये तो आपकी अपनी बसात है। हम किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि मुनासिब हो और उनकी जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं और जो इमीडिएट ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके।
लेट्स वेट एंड सी क्या होता है. एक एक प्लीज, वन बाय वन प्लीज. इस पे इसके बाद अफगानिस्तान के इशू को तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के नजर आ रहा है. कश्मीर के इशू पे क्या कर रहे हैं? इंडिया में जो हालात हो चुके हैं उस पे क्या कर रहे हैं? देखिए, कश्मीर के इशू पर बिल्कुल हमने हर फोरम पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है. मिसाल के तौर पर सलामती काउंसिल में एक अरसे दराज के बाद 3 मरतबा मसले कश्मीर पर बहस हुई. हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा? हिंदुस्तान का यह मौक़िफ़ था कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, जो हमने अपने आइन की कुछ शकें उनमें तरमीम की है, उनको हज़फ किया है, या उनका जो स्टेटस था ऑटोनमस उसको हमने दफन किया है. तो पाकिस्तान को क्या इसमें, पाकिस्तान इस पर सीख पा क्यों हो रहा है? ये हमारा अंदरूनी मामला है. और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बैन अक़वामी तनाज़ा है. कश्मीर का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है. हम इस पर बात करने में हक बजानिब हैं. हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त पाया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी हुई. एक नंबर 2, हमने कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं वो जारी हैं, आपके इल्म में है. और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान OIC की मेज़बानी का शर्फ हासिल करने जा रहा है. और नाज़रीन, यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस.